Hello students, good morning to all of you. Students, we have completed chapter number 12, exponents and powers in our last class. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਾ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 15 ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਗ੍ਰਾਫਸ। ਠੀਕ ਆ, ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 6th 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, 29th June 2020। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਪੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਗ੍ਰਾਫਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਐਪ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 15 ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਗ੍ਰਾਫਸ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬੇਟਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਲਾਈਨ। ਸਲੀਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਲਾਈਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 0, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 0। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 0 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸ ਦਾ ਵੀ 0 ਵਾਈ ਦਾ ਵੀ 0। ਠੀਕ ਆ, ਓਰੀਜਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਹੋਊਗਾ, ਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਐਕਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਈ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ 1 ਆ, 2 ਆ, 3 ਆ, 4 ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ 1 2 3 4। ਠੀਕ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਟ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਓਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੇਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬੇਟਾ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 2 3 3 ਬਾਕਸ ਛੱਡੋ। ਨੋ, ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ, ਜੇ 2 ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੋ, ਬਟ ਬਰਾਬਰ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਸੀ।
है ना, बार ग्राफ। हुण बेटा इस चैप्टर दे विच 8th क्लास दे विच असीं कुछ नवीं चीज़ां पढ़ांगे। आ वेखो बार ग्राफ असीं पढ़िया सी 7th क्लास दे विच। इस क्लास दे विच असीं सैकेंड नंबर ते हैगा पाई ग्राफ। ए पाई ग्राफ और सर्कल ग्राफ। पाई ग्राफ भी बोलते, इनू सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये की हुंदा वा सर्कल ग्राफ, ये बारे बेटा असीं ना चैप्टर नंबर 5th दे विच पढ़ांगे पूरा। ये विच की हुंदा वा, एक सर्कल हुंदा वा, सर्कल 360 डिग्री दा हुंदा वा। उहदे विच दस दिंदे आ एंगल्स के हिसाब नाल इन्ने परसेंट रोक। अच्छा, सब तो पहला बेटा ग्राफ यूज़ क्यों करते असीं, तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया सीगा इहदे बारे। ग्राफ काहदे वास्ते, जदों असीं कोई डाटा कंपेयर करना हुंदा, जदों असीं बार्स बनाउंदे आ उदों भी असीं डाटा कंपेयर करदे ना। मान लो किसी स्टूडेंट दे मार्क्स आ, ਉਹ बोलते मैक्सिमम मार्क्स किन्ने आ ते किहदे आ, असीं इत्थों टैली कर लांगे किन्ने आ ते किस बच्चे दे आ, कंपैरिजन करदे ना असीं ग्राफ्स दे उपरों। इसे तरह बेटा जिहड़ा ये पाई ग्राफ आ ना, पाई ग्राफ दे विच भी कंपैरिजन हुंदा वा कि किन्ने परसेंट जां एंगल्स दे हिसाब नाल हुंदा वा। ये सर्कल वा ना, ये एंगल्स के हिसाब नाल दसदा वा किन्ने परसेंट किहड़ी चीज़ किन्नी हो रही आ। ठीक आ, ये असीं 5th चैप्टर च पढ़ांगे। थर्ड टाइप हुंदी है हिस्टोग्राम। ठीक आ, हिस्टोग्राम जिहड़ी आ ये भी 5th चैप्टर दे विच असीं पढ़ांगे। हिस्टोग्राम कदों यूज़ हुंदी आ, इहदे बारे बेटा तुहानूं मैं उहदे विच कंप्लीट नॉलेज दूँगी। ये वखरा टॉपिक आ साडा, वखरा चैप्टर दे विच वा जदों इंटरवल्स आ जांदे आ। ठीक है, ये अजे तुहाडे लई न्यू कंसैप्ट आ, ये तुहानूं मैं 5th चैप्टर दे विच ही क्लीयर करवाऊँगी, बिकॉज उहदे विच पूरा एक्सरसाइज पूरे चैप्टर दे विच एक्सरसाइज है इहदी। सो जस्ट मैं इत्थे तुहानूं एक मेन आइडिया दे दिंदी कि ग्राफ इत्थे किन्नी तरह दा, एक बार ग्राफ पढ़िया, पाई ग्राफ पढ़िया, हिस्टोग्राम पढ़ांगे। इस चैप्टर दे विच असीं पढ़ांगे लाइन ग्राफ। तुहाडा मेन 15th चैप्टर दा टॉपिक हैगा वा लाइन ग्राफ। ठीक है, ये लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डाटा, 1 सेकेंड बेटा, ए लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डाटा दैट चेंजिस कॉन्टीन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। लाइन ग्राफ सानू की शो करता है, लाइन ग्राफ वो डाटा शो करता जिहड़ा कॉन्टीन्यूसली चेंज हुंदा टाइम दे नाल। ठीक है, अज जिवें एग्जाम्पल दित्ती है, वैन रेनू फैल सिक हर डॉक्टर मेनटेन्ड आ रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टैंपरेचर टेकन एवरी 4 आवर्स। कहंदे रेनू जदों बीमार होई सी, उहदे डॉक्टर ने उहदी बॉडी दा टैंपरेचर चैक किया हर घंटे बाद, 4 घंटे उन्हें नोट किया वा। इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। फिर उन्हें इस जिहड़ा उन्हें टैंपरेचर चैक किया सीगा उन्होंने ग्राफ की फॉर्म दित्ती आ। इनू असीं टाइम टैंपरेचर ग्राफ भी देवांगे। जिवें आ वेखो, उन्हें 6 AM टाइम कितना सी, 6 AM सवेरे 6 बजे चैक किया, टैंपरेचर हैगा 37 डिग्री सैल्सीयस। फिर उन्हें 10 बजे चैक किया 40 डिग्री, फिर 2 बजे चैक किया 38 डिग्री, 6 बजे चैक किया 35 डिग्री। वेखो बेटा टाइम वेखो, पहला 6 बजे, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर 6 बजे, 4-4 घंटे का डिफरेंस आ विच। 6 4 10, जो 10 वजते आ फिर 4 घंटे बाद 2 वजने आ, फिर 4 घंटे बाद 6 वजने आ। ठीक है, की आ कॉन्टीन्यूसली कोई काम हो रहा वा, ये लाइन ग्राफ नाल असीं शो करांगे। लाइन ग्राफ कदों यूज़ करते असीं, जदों कॉन्टीन्यूसली कोई चीज़ हैपन हो रही आ। हाँ जी, आ देखो उन्हें दिता होया टैंपरेचर 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे, फिर 6 बजे, है ना। इधर बेटा वेखो, ये मैं तुहानूं 7th क्लास विच भी दस्सिया सी, जे तुसीं 5 0 तो शुरू करदे हो, फिर 5 10 15 20, दैन ठीक आ। अगर तुसीं वेखो 0 तो बाद आ इत्थे 10 का गैप छड्डता, सॉरी 30 का, 30 ते चले गए, अगे वेखो 2-2 का गैप चलन दिया वा, 30 32 34 36 अगे 2-2 का चल रहा। दैन सानू इत्थे एक ब्रेकिंग पॉइंट देना पएगा। ये असीं 7th दे विच भी पढ़िया सी। जदों असीं डाटा तो एकदम जंप करते हैं, ठीक है, उदों असीं
ब्रेक पॉइंट दिन्ने आ इहदे विच। ये ब्रेक पॉइंट एक बॉक्स भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो तुसी, ठीक है। अगे वेखो 2 का गैप चल रहा वा, इत्थे 0 to 30 गया, फिर असी की कीता, इत्थे ब्रेक दिता वा कि इत्थों डाटा चलदा आ रहा ऑलरेडी। क्लीयर है स्टूडेंट्स? सो बेटा हुण असी अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 15.1। The following graph shows the temperature of a patient in a hospital। उन्होंने क्या है, ग्राफ शो कर रहा वा किसी पेशेंट का टैंपरेचर किसी हॉस्पिटल दे विच रिकॉर्डड एवरी आवर, हर घंटे बाद रिकॉर्ड किया गया टैंपरेचर। किसी पेशेंट का किसी हॉस्पिटल दे विच हर घंटे बाद रिकॉर्ड किया गया टैंपरेचर। वेखो इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस आ, इधर सानू दिता होया टाइम, ठीक है, इधर सानू दिता होया वा टैंपरेचर डिग्री सैल्सीयस दे विच। ये बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ क्वेश्चन वाली फिगर्स आ ना, ये ग्राफ के उपर बननिया जो, ठीक है। तो राजे इन्होंने पता बुक के उपर बराबर बॉक्स नहीं छड्डे हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानू दवां, इत्थे वेखो आह वाला ग्राफ सीगा ना, इत्थे इन्हें पहला दो बॉक्स छड्डे आ, फिर इन्हें तीन छड्डने शुरू कर दिते। बट इदा नहीं बेटा, जदों तुसीं क्वेश्चन वाले ग्राफ करने आ ना, वो तुसीं एज इट इज़ ही कर लो। बट ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਬਾਕਸ ਛੱਡਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਬਾਕਸ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਬਾਕਸ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਧਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 9 AM 10 AM 11 AM 12 noon 1 PM 2 PM 3 PM। इधर सानू टैंपरेचर दिता वा सैल्सीयस डिग्री च, ठीक है। उन्होंने कहा वट वाज द पेशेंट्स टैंपरेचर एट 1 PM, दोपहर तो बाद 1 बजे कितना टैंपरेचर सी। वेखो 1 PM कित्थे आ रहा, 1 PM 1 PM ते टैंपरेचर कितना वा, आ देखो 1 PM ते आ रही डॉट, कितना टैंपरेचर इधर चेक करो, आ रहा 36 ते 37 के इन बिटवीन कितना होएगा, फिर इत्थे इत्थे होएगा फिर 36.5 डिग्री, है ना। 1 बजे के कॉरस्पॉन्डिंग चैक कर लिया, 36 ते 37 के विच कितना टैंपरेचर होगा, 36.5 36 ते 37, 36 एंड 37 के इन बिटवीन आएगा 36.5 डिग्री। सो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट दे ए पार्ट का 36.5 डिग्री सैल्सीयस, ठीक है। ग्राफ देखना आउंदा होना चाहिए बेटा तुहानू। वैन वाज दी पेशेंट्स टैंपरेचर 38.5 डिग्री सैल्सीयस, 38.5 देखो कित्थे आ रहा 38, आ रहा 39, 38.5 38.5 का मतलब 38 एंड हाफ, वो 38 तो 39 दिन बिटवीन आएगा, इत्थे आएगा 38.5। इत्थे वेखो टाइम कितना, ये डॉट चेक करो कित्थे, इस लाइन ते, इस लाइन ते आ रही डॉट, है ना। ये कॉरस्पॉन्डिंग टाइम वेखो कितना वा, इस लाइन के उपर वेखो कितना टाइम है, इत्थे 12 नून, कितना वा टाइम इत्थे 12 नून। सो बी पार्ट का आंसर कितना आ जाना वा 12 नून। The patient's C part इहदा, the patient's temperature was the same 2 times during the period given। What were these 2 times? उन्होंने क्या वा 2 टाइम पेशेंट का टैंपरेचर सेम रहा वा, वो केड़ा टाइम सीगा, पेशेंट का टैंपरेचर सेम रहा वा, मतलब टैंपरेचर वाली लाइन स्टिल रही आ, नाउ अप गई आ नाउ डाउन आई आ, वो स्टिल रही आ, ठीक है। आ देखो इत्थे टैंपरेचर की लाइन सेम रही आ, जिथे हैगी सी उत्थे रही है, ना ही अप गई ना डाउन। टाइम कितना सी इत्थे 1 PM एंड 2 PM। इसका आंसर आ जाना 1 PM एंड 2 PM। नेक्स्ट पार्ट, वट वाज द टैंपरेचर एट 1:30 PM।
हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। उन्होंने कहा 130 के टैंपरेचर कितना सी, तुहानूं किवें पता लगा। 130 का मतलब 1.5 1 ते 2 दे विचकार वजेगा ना, है ना। 1 and 2 इन बिटवीन आएगा 130। वेखो 130 इत्थे आएगा, इत्थे आएगा ना 130, तो 130 के कोरसपोंडिंग टैंपरेचर वेखो कितना आ रहा, इत्थे है ना लाइन, कितना टैंपरेचर इत्थे वेखो 36.5। 1:30 बजे कितना टैंपरेचर आ, उहदा 1 तो 2 दे विच सेम टैंपरेचर रहा वा, फिर 1:30 बजे भी सेम ही रहा, ये आ जाना वा 36.5 डिग्री। उन्होंने क्या किवें पता लगा, असी लिखांगे 1:30 PM lies between 1 PM and 2 PM and temperature is same between 1 PM and 2 PM। 130 ਜਿਹੜਾ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਏਗਾ, ਤੇ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੈਨ ਈ ਪਾਰਟ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਡਿਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸ਼ੋਡ ਐਨ ਅਪਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਅਪਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਅਪ ਗਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ 9 ਤੋਂ 10 अप गया, फिर 10 तो 11 भी अप गया, 11 तो 12 डाउन आ गया, फिर 12 तो 1 भी डाउन आ गया, फिर स्टिल रहा, फिर अप कित्थे गया 2 तो 3, मतलब 9 तो 10, 10 तो 11 ते 2 तो 3। जिहड़ी अपवर्ड डायरैक्शन दे विच लाइन आ, इहदा मतलब टैंपरेचर अप गया। सो इहदा आंसर की आ जाएगा डी पार्ट दा 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM and 2 PM to 3 PM। ठीक है स्टूडेंट्स, अज ਲਈ बेटा इन्ना ही बहुत आ। तुसी पहला ग्राफ वगैरह वेखना सीखो। हुण जिद्दां इहदे क्वेश्चन दे विच सी, इत्थे भी ब्रेकिंग पॉइंट आ, क्योंकि ये भी 0 तो 34 ते जंप किया है, फिर अगों 1 का डिफरेंस, इस करके इत्थे भी ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। ठीक है। सो बेटा जिन्नी चीज़ मैं समझाई है ना ग्राफ के बारे, ये चीज़ बड़े ध्यान दे नाल समझो। सो क्योंकि यही चीज़ तो तुहानूं क्लीयर होना ग्राफ, फिर अगे जाके कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो बाकी असी अपनी नैक्सट क्लास के कंटिन्यू करांगे। अज लई एक ही क्वेश्चन एंड बाकी बेसिक्स आ। ठीक है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।